आज अमेरिका में यूएस फेडरल कोर्ट द्वारा पाकिस्तान और अमेरिकन संपर्क के एलिटी टेररिस्ट आतंकवादी डेविड हेडली पर उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे उस पर सजा सुनाई गई है। टुडे द यूएस कोर्ट हैज ऑर्डर्ड conviction of Pakistan American elite terrorist David Headley and given a 35 years imprisonment. If you can recall, we had earlier said, and the grounds for conducting a trial there, David Headley had, what we call in India, had turned an approver, claiming amnesty from being given a death sentence. And further to that, we had raised certain reservations then. And further to that, the trial was held and he has been given a 35-year sentence. 35 साल का उनको कारावास की घोषणा की गई है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो सजा सुनाई गई है, ये उन 6 अमेरिकी जिनकी हत्या 2008 में इन आतंकवादियों द्वारा की गई थी, उसके एवज में सुनाया गया है। It seems that the conviction which has come by the US Federal Court is done on behalf of those 6 Americans who were killed in 2008 in the Mumbai attacks. Well, of course, the US court has taken a considered viewpoint on that, but the fact remains that he was made an approver and given an amnesty as far as death penalty is concerned. लेकिन हमें एक विषय याद करना पड़ेगा कि उस पूरी घटना में 166 लोग मारे गए थे और उन 166 में सिर्फ भारत के लोग ही नहीं, अमेरिका के ही लोग नहीं, दुनिया भर के देशों के लोग मारे गए थे। और शुरू से भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि इस पूरे केस के फेयर ट्रायल के लिए ये आवश्यक है कि डेविड हेडली को भारत के सुपुर्द किया जाए, भारत को भेजा जाए। दिस केस रिलेट्स टू अटैक ऑन मुंबई in which 166 people were massacred and about approximately 300 people were injured. And then also Bharatiya Janata Party had said that Headley should be extradited, he should be sent across to India, and trial should be held on Indian land. The court has convicted him in the US, but a fair trial can only be there if Headley is extradited and the trial process takes place in India. In fairness of justice, he should be sent across to India, and the Indian courts and the Indian investigation agencies should conduct the trial. We had caught Kassab, we charge-sheeted him, the trial was held, he was convicted, and death sentence was awarded to him, and he was hanged. Why can't that trial take place in India as far as Headley is concerned, and when it's proven beyond doubt that he had his hands in the Mumbai blasts? But what is still more important is that we have said that links of Pakistan is there, and Pakistan has always been denying the links in 2008 Mumbai attacks. भारतीय जनता पार्टी ये निरंतर कहती रही है कि 2008 के उस पूरे में जिस प्रकार से हमला किया गया था उसमें पाकिस्तान का हाथ है, और पाकिस्तान की सरकार निरंतर इस दावा को गलत बताती रही है। In order to find the larger conspiracy of a failed state, पाकिस्तान के इस पूरे 2008 के हमले में जो उनकी हाथ थी, उसे पूरी तरह से दुनिया के सामने प्रमाणित करने के लिए आवश्यक है
कि हेडली को भारत के हाथ में सौंपा जाए, और शायद हफीज, जो इस पूरे घटनाक्रम में आज भी पाकिस्तान में बयान दे रहा है, वो भी इस पूरे घटनाक्रम में इस बड़े हमले के लिए जिम्मेवार रहा है। जब तक हेडली को भारत को सुपुर्द नहीं किया जाता, पूरे तह तक सच का पता लगाना कठिन रहेगा। और जहां अमेरिका, जिसके साथ संभवतः 2009 में हमारी एक संधि हुई थी जिसमें आतंकियों को सौंपने की बात कही गई थी, उस प्रावधान के तहत निश्चित रूप से अमेरिका को डेविड हेडली को भारत को सुपुर्द करना चाहिए। और यदि हम अमेरिका पर प्रभाव डाल करके इस आरोपी को नहीं ला सके, तो स्वाभाविक तौर से जो दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने का संकल्प है और जिसमें अमेरिका भी सम्मिलित है, हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। और पाकिस्तान, जो अपने आप में विफल देश के रूप में उभर के आया है, यदि अमेरिका ने इस कदम को नहीं उठाया तो हम कामयाब नहीं होंगे। आई वुड जस्ट लाइक टू पोजीशन ऑन रिकॉर्ड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑर्डर डेटेड 14 September 1999, the extradition treaty between the government of Republic of India and the government of United States of America. Whereas the extradition treaty between government of the Republic of India and government of the United States of America was signed at Washington, D.C. on 25th June 1997, and in accordance with Article 23 of the treaty, instruments of ratification were exchanged at New Delhi on 21st July 1999, which is as follows. And it's a 15-page document. The contracting stages agreed to extradite to each other, pursuant to the provision of this treaty, person who, by the authorities in the requesting state, are formally accused of, charged with, or convicted of an extraditable offense, whether such offense was committed before or after the entry into the force of the treaty. It's a comprehensive treaty, and I think the government of India should enforce this treaty. जो संधि के बारे में हमने विषय के बारे में हमने चर्चा किया है, इसकी एक प्रति भारत और अमेरिका के बीच में 1999 में ये सहमति और संधि पर हस्ताक्षर हुआ, भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच में, जिसमें जो भी आरोपी हो अमेरिका की धरती पर या भारत की धरती पर, उसे सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। हम मनमोहन सिंह जी से और भारत की सरकार से आग्रह करेंगे कि जिस पृष्ठभूमि में मैंने चर्चा किया है कि अमेरिका के उस बड़े षड्यंत्र और उसमें पाकिस्तान के उस बड़े षड्यंत्र, क्षमा कीजिए, जिसकी जांच पिछले 2008 से चल रही है, उसकी तहकीकात करने के लिए और उसकी पुष्टि करने के लिए जो निरंतर पाकिस्तान अस्वीकार कर रहा है, ये आवश्यक है कि हेडली को भारत को सुपुर्द किया जाए। आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल अर्लियर, आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट इट, but the Bharatiya Janata Party would accept nothing short of extradition of Headley to India for a fair trial on Indian soil for all the 166 people and those 300 injured in the attacks in Mumbai in 2008. आज उच्चतम न्यायालय ने आंतरिक टिप्पणी की है कोलगेट पर और उस बड़े स्कैम पर. And it seems that the Supreme Court has indicated that the investigation being conducted by the CBI in the Colgate scandal, in which an imputed loss of 1,86,000 crores was given out by the CAG, seems to be a virtual sham. The fact remains, the impartiality of the CBI is questionable because the signatory to this allotment of coal blocks has been none else than the Prime Minister of this country. हमने ये स्पष्ट रूप से पहले भी कहा कि कोयले खदानों के आवंटन में, जिसमें इस देश का 1,86,000 करोड़ के नुकसान और लूट का विषय कहा गया था और जिसे CAG ने प्रमाणित किया, आज उच्चतम न्यायालय ने भी अपने अंतरिम टिप्पणियों में CBI के छानबीन को बिल्कुल एक बड़ा शैम करार दिया है.
और उस संदर्भ में कि इस पूरे छानबीन में जो तमाम 146 के आसपास जो कोल खदान आवंटित किए गए थे, वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री के अपने हस्ताक्षर से किए गए थे। और उस पृष्ठभूमि में जब यह आरोप कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की तरफ भी जाता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का जो अनुसंधान है, उस अनुसंधान पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम आरोपों को संदर्भित स्थापित करती है। तो भारतीय जनता पार्टी वुड insist that the CBI does file a charge sheet to those who were involved in the scam, and we shall wait for the outcome. देश के गृह मंत्री ने एक बयान दिया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी टिप्पणी व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त माननीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक देश के गृह मंत्री सार्वजनिक तौर से पूरे देश के सामने देश के तमाम हिंदुओं से माफी नहीं मांगते, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर संघर्ष में रहेगी और सरकार के अपने कारनामों के कारण अगला सत्र चलना संभव नहीं होगा। The newly elected President of the Bharatiya Janata Party, Mr. Rajnath Singh, has very categorically stated that for the statement made by Mr. Shinde, calling the entire nation, calling the Hindus of this country as terrorists, is unacceptable. We demand a public apology to the people of this country, the vast majority who stay in this country, for calling them terrorists and trying to give color to various communities. Bharatiya Janata Party has made it clear, the national president of the Bharatiya Janata Party has made it clear that unless and until Mr. Shinde gives a public apology and withdraws his statement and the remark made against 1,000 million Hindus living in this country that they are terrorists, they have association with terror, the Bharatiya Janata Party will not accept it. The Bharatiya Janata Party will fight this out on the streets, and it would be impossible to run the budget session of Parliament if the government chooses to speak and cast harsh charges against the Hindus in this country. We are aghast, we are shocked at the statement made by the Home Minister of this country. और उसके साथ साथ इस बयान के कारण जो सुशील शिंदे ने दिया है, दुनिया के आतंकवाद की उस जमात का सरगना हफीज सईद ने पाकिस्तान में बयान दिया है और भारत के गृह मंत्री के बयान को उसने उपयोग करते हुए दुनिया के सामने यह कहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक ढोंग रचता है, एक प्रोपेगेंडा करता है और आज तक पाकिस्तान से जितना आतंक भारत में फैलाया गया है वो एक ढोंग है। सुशील कुमार शिंदे के बयान के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तान में बैठ करके भारत के खिलाफ ये बयान देता है और भारत चुपचाप सांप्रदायिकता के इस राजनीति में, सेकुलरवाद के नाम के इस राजनीति से देश के दुनिया भर में अपमानित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को कतई स्वीकार नहीं करेगी, जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत का अपमान हो रहा है। We do not accept and will not accept even a known terrorist and a fundamentalist like Hafiz Saeed, who has an involvement in several terror actions which have taken place in India, using the phrase of the Home Minister of India to substantiate his position that India is spreading propaganda against Pakistan is a sad statement. The Indian Home Minister has played into the hands of a terrorist. We demand an immediate apology. But at the same time, we are shocked and amused. What does the government of India have to say after the Home Minister has made such a statement, playing into the hands of a terrorist position in a foreign land?
Bharatiya Janata Party is shocked and the country is shocked at the statement of Mr. Sushil Shinde. विश्वरूपम जो एक कमल हसन के निर्देशन और उसमें उन्होंने अपने एक्टिंग भी किया है। भारत सरकार ने इस फिल्म को पूरे भारत के थिएटरों में स्क्रीन करने की अनुमति दी, सेंसर बोर्ड ने अनुमति दी, और मैं मान के चलता हूं कि जब सेंसर बोर्ड ने यह अनुमति दी हो तो सभी जो संदर्भित विषय हैं उसका ध्यान दिया होगा। एक राज्य में इस फिल्म पर रोक लगाया है और कोर्ट ने भी उसमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। जिस बात को हम मानते हैं कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार को अधिकार है ऐसे फिल्मों पर अपना सर्टिफिकेशन देने का, वहीं राज्य सरकारों को भी अधिकार है अपने यहां विधि व्यवस्था बरकरार रखने का। और ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार इन विषयों का निदान करें, और जिस कम्युनल एंगल के विषय में चर्चा की गई है उसकी जांच हो, और इस फिल्म का स्वरूप सही है या गलत है, क्या केंद्र सरकार गलत है या राज्य सरकार गलत है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, और जो कोर्ट की राय होगी इस पर भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार करेगी देश हित में। The Jaipur Literature Festival, the Jaipur Lit Festival, which is there, which has been organized, where the literaturists across the world come along for the festival. It's been inaugurated yesterday. We are happy to note that the government has decided not to grant permission to the diplomats who wanted to attend that from Pakistan. The beheading of the soldiers on the borders and the Babai Act is unacceptable. That heinous crime is unacceptable, and there cannot be any dialogues on two fronts unless and until Pakistan cedes from its action of terror. हमने स्पष्ट रूप से कहा है और भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी तरह से समर्थन करती है। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में जिन पाकिस्तान के प्रतिनिधियों को जाने की अनुमति नहीं दी गई है, हमें विश्वास है कि भारत की सरकार दो रुख नहीं अपनाएगी, और जिस प्रकार से भारत के दो जवानों का सिर काट करके और उसके जिस क्रूरता के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया, दैट वाज एन अनप्रोवोक्ड एक्शन। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहेगी कि हम पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का संदर्भ नहीं चाहेंगे और किसी प्रकार का समझौता नहीं चाहेंगे यदि पाकिस्तान इस प्रकार की जघन्य और घिनौने हरकत करता रहा। We support the action of the government, and BJP shall not accept any of such actions on the borders being perpetrated by Pakistan and thereafter denying it. कई सारे पोल सर्वे आए हैं, 2 आए हैं, और उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि देश का मन और देश का झुकाव एनडीए के पक्ष में है। There seems to be a mood of the nation which has been discussed, and there are several poll surveys. We are happy and we have taken note of the mood of the nation. The poll surveys do indicate that people want a change in the government. सर्वेक्षण से ये स्पष्ट दिखता है कि देश में लोग परिवर्तन चाहते हैं और एनडीए के पक्ष में ऐसा मूड है। हम इसका स्वागत करते हैं, and we welcome the mood of the people, and that's a very positive survey for the NDA, and especially with the new president coming and taking charge, we take it as a happy note. We mark it as a happy note. सर, इसी मूड ऑफ द नेशन में बताया गया है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कहीं आगे हैं प्रधानमंत्री पद की एलिजिबिलिटी में। काफ़ी वोटर्स ने दिया है, यह बीजेपी के लिए खुशी की बात है। देखिए, आपने इस विषय को रखा है और जिसमें आपने ये चर्चा की है कि नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल नेता के रूप में उनका स्थान आगे है, और हम स्वीकार करेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का पक्ष देश के सामने अच्छा है, हमें अच्छा महसूस होता है, और इस पर कोई अधिक टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। रोडी जी, सर, मेरा भी सवाल इसी से लगभग जुड़ा हुआ है।
उस सर्वे में ये दिखाया गया है कि पूरा देश का मूड नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहता है। वहाँ पर देश के इस मूड से भाजपा खुश है, और क्या देश के मूड के साथ भाजपा हमेशा जाती रही, आगे भी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर से अगर देश में एक प्रकार का वातावरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और एनडीए के नेतृत्व में देश के लोग परिवर्तन देखना चाहते हैं और फिर से एक बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से हम उनके उम्मीदों पर खरे उतरे और उन तक पहुंच सके और उनके विश्वास को जीत सके, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। जहां तक आपने नरेंद्र भाई का सवाल उठाया है, देश के प्रधानमंत्री की चर्चा जब भी पार्टी के किसी फोरम पर होती है या इस प्रकार का जो कोर कमेटी में या पार्टी के भीतर निर्णय होगा, हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आप इस बात पर हमारा भरोसा करें। Mr. Venkat. Mike, yeah. Rudy ji, last week the Congress president made it very clear the corruption should be corruption should be come to an end. And now the Union Cabinet Minister under MK Aregiri, a major scam has broke out, and more than 1,000 crore rupees scam has been come out now. Import of potash per ton they have looted about 5,500 rupees per ton. So what is the BJP's reaction? Well, with this, whether the Congress was serious about bringing down the corruption, or is only a public stunt? Well, as far as the UPA government is concerned, you turn a leaf and there is a scam. You turn a page and there is a scam. And it's not very unusual about the UPA government. I believe you're talking about some scam which has emerged in Tamil Nadu. It's a matter of great concern. It's another corruption charge amidst all those, whether it was 2G, whether it was Colgate, whether it was Adarsh Housing, and several of them, and whether it was the Commonwealth Games. The UPA government has a full calendar of corruption charges, and there could be a script on each charge. Having said that, we have one more coming up. We shall come with a formal response on the subject shortly. Mr. Ravinder. रूडी जी, एक चीज़ की थोड़ी सफाई चाहते हैं। कल राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पर कहा था कि सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री देश से माफ़ी मांगे और शिंदे को बर्खास्त किया जाए, नहीं तो यह मामला संसद के अंदर जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि शिंदे माफ़ी मांग ले, नहीं तो संसद के अंदर जाएगा। ये रुख में परिवर्तन हुआ नहीं, है? कोई रुख में परिवर्तन नहीं है। सबसे पहले हमने कहा था कि सार्वजनिक तौर से माफ़ी मांगे, और मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी हो रही है, जिस प्रकार से हफीज सईद ने बयान दिया है, जिस प्रकार से गृह मंत्री के बयान को उपयोग करते हुए उसने पूरे भारत का उपहास किया है, मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि सुशील शिंदे साहब को अपने पद से अविलंब त्यागपत्र देना चाहिए। डॉक्टर मुमताज, उसके बाद फिर मेरा सवाल ये, कल मनीष तिवारी जी ने ये बीजेपी के ताल्लुक से सवाल उठाया कि चूंकि बीजेपी में अंदरूनी खलफशार है, उसको छुपाने के लिए इस इशू को उठा रही है, जबकि ख़ुद कांग्रेस ने ये एतराफ़ कर लिया कि सुशील कुमार शिंदे ने जो बयान दिया था और हिंदू दहशतगर्दी की बात थी, वो बिल्कुल गलत थी, और इसके लिए हम ये उनके बयान को हम वापस ले रहे हैं। इसके बावजूद बीजेपी मुजाहरा कर रही, प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, हमने साफ तौर से कहा था कि गृह मंत्री के ऊपर देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि सफाई देनी है और यदि देश के लोगों से माफ़ी मांगना है, या तो स्वयं देश के प्रधानमंत्री करे, या फिर गृह मंत्री करे, या सोनिया जी करे। अभी तक उनके तरफ से इस संदर्भ में कोई बयान नहीं आया, और दुनिया भर के आतंकी आज भारत को आतंकी करार दे रहे हैं। मुझे लगता है ये वक्त आ गया है कि गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लेना चाहिए। हरीश लखेड़ा, उसके बाद आप। रूडी जी, मैं सर्वे पे आऊँगा। सर्वे तो जो भी कहता हूँ, लेकिन एक ज़मीनी सच्चाई ये भी है कि एनडीए में अब सिर्फ 4 दल हैं। हिमाचल, उत्तराखंड, झारखंड आपके हाथ से निकल गया है, कर्नाटक भी जाने वाला है, यूपी में हालत ख़राब है। कैसे सरकार बनेगी? आपने जो सवाल किया है, देश का मिजाज, और हम अब तैयारी कर रहे हैं। देश में अगले 1 वर्ष में हमारी तैयारी होगी। परिणाम का आप इंतज़ार करें। यदि सर्वेक्षण में इस प्रकार के संवाद मिल रहे हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एनडीए की बढ़त है, मुझे लगता है कि थोड़े वक्त का और आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। Some of the Congress leaders claim that RS people are also involved in terrorism. Well, we have said that it's a bizarre statement. Then
People from the RSS are nationalists. They are the true nationalists in this country. They have a core commitment to the nation. And the desperation in the Congress party on grounds of secularism for their politics of votes is prompting them to make such bizarre statement. It's unacceptable. Mrs. Radhika Ramsey. Mr. Rudy, you unilaterally welcomed all the findings of the survey except, you're very unusually coy on the one on Narendra Modi. Now, both the surveys have shown that if the BJP projects Mr. Modi as the Prime Minister, there is going to be an accretion in its vote share, further accretion in its vote share than what was shown without the projection of Mr. Modi. Why then are you so coy about committing yourself to Well, Mr. Modi's I understand your center-staging? sentiments, Radhika. I understand your Question of sentiments. sentiments, I'm just asking you a question. I understand your sentiments and I do appreciate, but I'm not competent to make such an announcement from the stage. There is a whole core group and there are seniors in the party who will take a call on the subject. As soon as a decision is made, we'll come to the media and speak it out for the first. Mr. Majumdar, उसके सर बाद कमलेश जी। रूडी जी, जिस तरह से इंडिया के शासन के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस का बहिष्कार किया गया था, तो क्या अगर सुशील कुमार शिंदे को बर्खास्त नहीं किया जाता तो आप उनके बर्खास्त की बायकॉट पर भी आप सोचेंगे नहीं? देखिए, इस विषय पर हम तय करेंगे कि आगे का हमारा रूपरेखा क्या हो। जिस प्रकार से सुशील शिंदे ने पूरे देश के हिंदुओं को आतंकी करार दिया है और अब दुनिया भर के आतंकी उससे आधार बना करके अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है और जो भी इस पर निर्णय होगा आगे के क्रम में हम आपको इस बात की जानकारी देंगे। मिस्टर कमलेश, उसके बाद मिस्टर पारसा। रूडी जी, सर्वे में नीतीश कुमार को भी दिया गया है ग्रेड, लेकिन मोदी सबसे ऊपर है, तो क्या दिक्कत है नरेंद्र मोदी को पीएम पद का कैंडिडेट घोषणा करने में? क्या नीतीश से आप डरे हुए हैं क्या? आपका इस विषय पर पहले भी आप लोगों ने पूछ लिया है, मैंने आपको उत्तर दे दिया। सर, कलाम ने एक जो रिवील किया हुआ है कि 1996 में न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नरसिम्हा राव तैयार थे, उस पर आप लोगों का रिएक्शन? क्षमा कीजिए, कलाम, एपीजे कलाम ने कहा है कि 1996 में न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नरसिम्हा राव तैयार थे, रेडी थे, इलेक्शन रिजल्ट से जस्ट पहले। I would not be able to make a comment now on this. मिस्टर पारसा, हाँ। पर्याप्त है आज के लिए? हाँ, मिस्टर पारसा, लास्ट सवाल। It's enough for the day, I think. This is just to ask you whether the BJP believes in the accuracy of polls as such. When it goes against you, perhaps you are skeptical, but it seems to favor you, and that is the reason you are naive enough to believe? No, it's a process. It takes place. There have been polls which have been accurate and they have come right. It's a process of assessing your situation. I would not say it is 100% correct, but it's very realistic, and that's what we have to accept as of now. लास्ट क्वेश्चन अमितेश। जी, रूडी जी, पाकिस्तान में कोट लखपत जेल में एक भारतीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान के जेल में अगर इस तरह की मौत हुई है तो इस पर बीजेपी क्या कहना चाहेगी? देखिए, भारत की सरकार इस मामले में कमज़ोर दिखती है और जब भी पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से हमारा रुख है और जिस प्रकार से हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं, जिस प्रकार से हमारे सिपाहियों को, हमारे फौजियों को सरहद पर जिस प्रकार से उनके साथ उनकी हत्या की गई है और भारत का रुख हमेशा लचीला रहा है पाकिस्तान के प्रति, हमें लगता है कि सरकार को हर स्तर पर, चाहे वो किसी कैदी की मौत हो किसी पाकिस्तान के जेल में या फिर पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक रह रहे हैं और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, इन सभी विषयों पर भारत की सरकार को बड़ी मजबूती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। Mr. Rudy, there are reports in the newspapers that Mr. Nitin Gadkari, first day after quitting as party president, the first thing he does is to threaten the IT officials, saying that they should remember who's going to come to power next before they start doing what they are doing to him. Well, this is what has appeared in the newspapers today. The only submission which we would like to make as the Bharatiya Janata Party in reference to Mr. Gadkari's statement is that the officials must work without any bias. And it seems that in this particular case, there was an exhibited bias. And possibly to this, Mr. Gadkari has reacted. The job of an officer is to
to be unbiased, to be impartial, to conduct an inquiry as fairly. But when such instance on a particular occasion happens, it does show that there is a bias, there is an impartiality which has not been exhibited, and possibly that may have prompted some utterance. But I'm sure it is in the backdrop of just a message that the officials should be impartial in probes. No, but saying that they should be impartial or stick or go by rules and regulations is something very different from saying that you should remember that we are coming to power, who's going to come to power. It's almost threatening them. We'll still ascertain the facts about it and we'll get back to you. Mr. Manoj Verma. रोली जी, आज वोटर डे है और चुनाव आयोग ने देश के सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया था विज्ञान भवन में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि वहाँ नहीं गया, एक आध को छोड़कर, भीष्म शर्मा हैं उनको छोड़ के। इसे आप किस रूप में देखते हैं कि आप लोग वोट तो मांगते हैं लेकिन वोटर डे पे जाना जरूरी नहीं समझती इस देश के राजनीतिक दल? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। विकास भदौरिया, फिर मंगेश जी आप। रावत जी थोड़ा सा फास्ट। इतना धीरे। रूडी जी, कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने 4 फरवरी को कर्नाटक में सरकार को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए बोला है। 2 महीने बाद 3 महीने बाद वहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले सरकार के ऊपर कोई ऐसा गंभीर संकट भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरे जानकारी में ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है, यदि कोई इस्तीफा सौंपता है तो उसकी जांच करे, परख करे और उसके बाद कार्रवाई करे। लेकिन इससे पहले ये प्रक्रिया पूरी की गई है। कर्नाटक के राज्यपाल ने हस्तक्षेप करके एक बहुमत साबित करने का संकेत दिया है, निर्देश दिया है, जो वर्तमान परिस्थिति में असंवैधानिक प्रतीत होता है। ये अधिकार है राज्य सरकार और अध्यक्ष को, सबसे पहले इस विषय की जांच की जाए और जांच के पश्चात ही संबंधित राज्यपाल को से संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि हंसराज भारद्वाज मूल रूप से राज्यपाल के रूप में नहीं, एक कांग्रेस के एजेंट के रूप में वहाँ कार्य करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।